Bismillahirrahmanirrahim. Now we discuss the second part of the 12th chapter of Classic. In this chapter, we discuss the circles, disk, half planes, complex function, limit, continuity, derivative, analytic functions, Cauchy-Riemann equations, and harmonic functions, etc. We discuss these things in this chapter. Now we start first circles and disks. How can you define these terms? Circles and disks. How can you define circles? Basically, circle is the collection of the points which are equidistant from the fixed point. Collection of the points from the fixed point which are equidistant from the fixed point is called circle. जैसे ये देखें, ये आपने देखा है, इसमें ये सर्कल है जो फिक्स्ड पॉइंट ए से इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उन्हें ज्वाइन करने से बना है. ठीक है, जैसे इस फिगर में देखो, इसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स ले लिए. वी टेक ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ए एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड द सर्कल. समटाइम्स this distance is greater than rho. Sometimes the collection of the points has the distance less than rho. If the points has the distance less than rho, means the collection of the points whose distance from the fixed point A is less than rho, means all the points lie inside, right? And sometimes distance of the points from fixed point A is greater than rho, means all the points lie outside. When lie inside, then that is the interior of the circle, and when lie outside, that is called exterior of the circle. And when collection of the points where all the points which are equidistant from the fixed point A and all the collection of all the points which are distance less than rho from the fixed point A, means कि आपने सारे वो पॉइंट्स लेने हैं जो इक्वी डिस्टेंस से हैं ए पे, और वो पॉइंट्स भी लेने हैं जिनका डिस्टेंस रो से कम है. मतलब ये बाउंड्री भी आ गई और अंदर वाला पार्ट भी आ गया. इसका मतलब ये तो एक डिस्क बन गई जो कि क्लोज्ड डिस्क है. अगर बाउंड्री शामिल ना हो, इफ़ देयर इज़ नो बाउंड्री, इफ़ नो बाउंड्री इंक्लूडेड, देन यू कैन से दैट ओपन डिस्क. अगर बाउंड्री शामिल है तो क्लोज डिस्क, बाउंड्री शामिल नहीं है तो ओपन डिस्क. Or if you get the points which are not equidistant from the fixed point but the distance is greater than rho, means all the points which lie outside this circle, so that is called exterior of the circle. ये पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस ए से जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो फिक्स्ड है, तो वो सर्कल है. अगर वो सारे पॉइंट ले लो जिनका पॉइंट ए से डिस्टेंस फिक्स है और लेस भी है रो से, मीन्स अंदर वाले पॉइंट्स भी आ गए. ये जो सारे अंदर वाले पॉइंट्स है जो क्लोज डिस्क हो गई. अगर बाउंड्री शामिल नहीं करेंगे तो ओपन डिस्क, और अगर बाउंड्री शामिल ना करें और बाहर वाला सारा पोर्शन हो, मीन्स डिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स का ग्रेटर देन रो, तो डेट इज एक्सटीरियर. ये सारी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सारी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है. ठीक है, एक और केस है, वेन एवर द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स आर दोज whose distance from the fixed point is greater than rho1 and less than rho2. मतलब सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जिसमें डिस्टेंस rho1 से ग्रेटर हो, rho2 से लेस हो, मीन्स द पॉइंट्स लाई इनसाइड दिस रिंग शेप. मीन्स दिस इज द एनुलस शेप, रिंग शेप. ये जो रिंग सा बना हुआ है इसको एनुलस भी बोलते हैं. इफ बाउंड्री इंक्लूडेड, then you can say that closed ring or closed annulus, and if the boundary does not include it, then you can say that open ring or open annulus. ठीक है, remember this point. Now we discuss all the points here in the notes. See that collection of all the points whose distance, this modulus sign represent the distance from the fixed point is rho, then that is called circle. But if the collection of all points whose distance is less than rho is called the interior of the circle, means open disk. Not equal here. If there is equal sign, means those points which are equal and which are less than rho, then that is called
closed disk, and this is the circle which is a unit circle whose center is 0 and radius 1, which is denoted by S. After that, this one is called open disk, or you can also say that this is the neighborhood of Z. neighborhood उन पॉइंट्स को कहते हैं जो Z के पास पास होते हैं, तो ये Z के पास पास वाले पॉइंट्स है ना, इतने दूर नहीं होते ये पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद ये देखिए एनुलस, अगर इक्वल लगाया होगा तो ये क्लोज्ड एनुलस होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो ये ओपन एनुलस होगा। ये शेप भी मैंने आपको वहाँ क्लियर की है, ठीक है। इसके बाद ये हाफ प्लेन्स क्या हैं, अगर आप y पॉजिटिव लें तो वो अपर हाफ प्लेन है कम्प्लेक्स में, अगर आप y नेगेटिव लें तो वो लोअर हाफ प्लेन है, अगर आप x पॉजिटिव लें तो राइट हाफ प्लेन है, और अगर आप x नेगेटिव लें तो लेफ्ट हाफ प्लेन है। ये सारा मैंने इधर लिखा हुआ है। सो देयर आर 4 केसेस हियर, राइट। You can also see here, if y is positive, this is the upper half plane, y negative, this is the lower half plane, and if x is positive, then that is the right half plane, if x is negative, that is the left half plane. So these are the planes, and now we draw different curves in this plane, and this plane is complex plane, remember it. Problem set 12.3 of Krasik, right? Now this equation is given. Determine, sketch or plot the set in the complex plane given by. क्या करेंगे, ये मैंने ले लिया। यू नो डैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, सब्सिट्यूट z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई हियर एंड सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देन यू नो डैट मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर होल अंडर रूट, एंड हियर इज लेस देन इक्वल 1/2, and you can write it as if squaring on both sides, then you get, and 1/4 is equal to 1/2 square, means this is the less than equal means closed disk। अगर यहाँ लेस ना होता, सिर्फ इक्वल होता तो ये सर्कल होता। अब लेस का मतलब है अंदर वाले पॉइंट भी शामिल है, तो इसका मतलब दिस इज द क्लोज्ड डिस्क ऑफ रेडियस 1/2 एंड सेंटर एट -2 एंड -5। इधर के ऑपोजिट साइड सेंटर के होते हैं। जब मैंने इसको ड्रॉ किया, ये बहुत छोटा सा बनेगा, देखें मैंने इसको डार्क किया, आपके नोट्स में ये इतना डार्क नहीं होगा। अब ये देखें -2, यहाँ पे -3 है, ये नज़र नहीं आ रहा, तो याद रखिए कि सेंटर है, और रेडियस बड़ा छोटा सा है 1/2, ये आपने बना के और लिख देना है कि विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द क्लोज्ड डिस्क विद रेडियस 1/2 एंड सेंटर एट दिस वन। अगला देखें, ये कुछ एनुलस टाइप का बनेगा। चेक करते हैं, जी को अगेन एक्स प्लस योटा वाई लो, इसके रियल इमेजिनरी पार्ट लैदा करो, मॉडुलस को डिफाइन जैसे किया हुआ है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर होल अंडर रूट एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन यू गेट दिस वन। सो मीन्स यहाँ इक्वालिटी नहीं है, देयर इज नो इक्वालिटी, सो मीन्स दिस इज ओपन एनुलस, दिस रिप्रेजेंट द एनुलस विद सेंटर 4 एंड -2 ऑपोजिट साइन के साथ, एंड one radius is 1/2 and the bigger radius is 2, this represent the annulus, open annulus, remember it, ठीक है। इसकी फिगर ये बनाई हुई है मैंने, ये देखें ये इसकी फिगर है, सॉरी ये नहीं है इसकी फिगर मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, ये है इसकी बेटा फिगर, वो 2 दफ़ा फिगर बन गई, आप इसमें नोट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट वाले की फिगर है, ठीक है। ये इसकी फिगर है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये भी 2 टाइम्स एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट, ये भी 2 टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा, ये कुछ नोट्स में प्रॉब्लम थी, कुछ गुम गए थे, इसलिए दोबारा आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने 3rd वन कर लेना है, 4th वन कर लेना है, 5th कर लेना है, ये सारे मैंने इधर सॉल्व किया मैं, ये देखिए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, मुझे बता दीजिएगा। ये इसमें इंटीरियर बनेगा, ये जो है ये इसके अंदर इंटीरियर बनना है इसका। इसके बाद ये देखें, ये भी एक 6 पार्ट है, फिर 7 है, 8 है, 7 तक कर लीजिएगा, 8 में कुछ मुझे मिस्टेक लग रही थी, आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखें, इसमें जो है वो साइन आता है ग्रेटर का, मीन्स दिस इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल विद सेंटर 1/2 एंड 0 एंड रेडियस 1/2 एक्सटीरियर है, मतलब ये बाहर वाला पोर्शन, राइट। और ये अगली मैंने डायग्राम भी बना सॉल्व है, और आपके पास सॉल्व पहुंचे हुए हैं। और अगर आपको फिगर्स देखनी हो तो ये देखें, मैंने इधर फिगर्स क्लियर की हुई हैं, कहीं फिगर में प्रॉब्लम है इस वीडियो को देख लीजिएगा खोल कर, ये सारी फिगर्स मैंने क्लोज करके आपको दिखाई हैं, ये देखें मैंने डार्क की हैं कि अगर नोट्स में आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिगर्स मैंने क्लियर कर दी जी। अब है कम्प्लेक्स फंक्शन, सेम फंक्शन की डेफिनेशन, जैसे फंक्शन इज अ रूल विच असाइन ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ अदर सेट, दोनों सेट कम्प्लेक्स नंबर्स के ले लो,
फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रूल विच असाइन ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ अदर सेट। इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो कंप्लेक्स फंक्शन क्या होगा? विच असाइन ईच कंप्लेक्स नंबर टू द फर्स्ट सेट टू द यूनिक कंप्लेक्स नंबर ऑफ द सेकंड सेट। तो ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन, जो कि मैंने इधर लिखी हुई है। अगर आपको फिर भी फंक्शन समझना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसको अलहदा लेक्चर में फंक्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? कुछ ऑनलाइन कर लेंगे। जैसे आप देखें इसके सारी ये डेफिनेशन है, आप एक आधी डेफिनेशन इसमें से कीजिएगा जो आपको सिंपल जिसकी वर्डिंग लगे। अब ये एक एग्जाम्पल है फॉर द फंक्शन एफ डिटर्मिंड एफ ऑफ जी इससे दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसमें से आप u और v निकालें। तो कैसे निकालेंगे एफ ऑफ जी को? पहले आपको पता है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू किसके होता है? एफ ऑफ जी इक्वल होता है u प्लस योटा v। ये याद रखना, जिस तरह z इक्वल होता है ना x प्लस योटा y, उसी तरह एफ ऑफ जी को ये मैंने पिछले पेज पे डिफाइन किया हुआ है, लास्ट पेज पे। ये होता है u प्लस योटा v। अब आप इसको यही रहने दें और एफ ऑफ जी की वैल्यू लगाएं। z होता है x प्लस योटा y। उन सबको इसके अंदर लगा के इसको ओपन करें और इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें, तो आपके पास u और v आ जाएगा। इस तरह की ये बहुत सी एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व हैं। बस आपने यहाँ ये याद रखना है कि जिस तरह से z x प्लस योटा y है, तो एफ ऑफ जी को आप हमेशा के लिए u प्लस योटा v कहते हैं, ठीक है? ये बाकी सारी एग्जांपल्स हैं कि इसमें u प्लस योटा v निकालना है। जहाँ प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, ये देखें इसमें कुछ फंक्शन दिए हैं, उसने कहा यू वी निकालें, ठीक है? आपको पता है ये एफ ऑफ जी हमेशा यू प्लस योटा वी होता है, जी एक्स प्लस योटा वी वाई होता है, +2 +3 योटा। इसको आप रियल इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें और इसको फिर आप इसमें कंपेयर करके यू और वी की वैल्यू निकाल लें। सारे आंसर भी मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? चलें अब लिमिट कंटिन्यूटी बाद में करेंगे। यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे z होता है x प्लस योटा वाई, तो एफ ऑफ जी u प्लस योटा वी होता है। अंदर एक्स वाई इसलिए लिखा है कि z एक्स वाई का फंक्शन है। सिंपल भी आप लिख सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। कंप्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन में वहाँ नोट्स में भी दिया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है?